आहिस्ता चल ए जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ दर्द मिटाने बाकी हैं, कुछ फर्ज निभाने बाकी हैं. गुड इवनिंग, ladies and gentlemen. I am Colonel Manish Kochar, retired from Army, and your host for today's Value Talk. Through Value Talks, it's our endeavor to bring on board experts from varied fields and devise a method of due diligence through various methods, checklists, ताकि हम और आप अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसे जो हैं वो गंवाएं ना और हम अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर डिसीजन ले सकें. Through Value Talks, we also intend to provide a forum जहां आप सब लोग अपनी जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी उनके आपके सवाल हैं, किसी भी विषय में, स्पेशली फाइनेंशियल डील्स के विषय में जो भी सवाल हैं वो आप हमसे पूछ सकें और उन सभी सवालों के जवाब ढूंढ के लाने की जिम्मेदारी जो है वो वैल्यू टॉक टीम की रहेगी. We'll be uploading these webinars, videos on YouTube as well as other forums. The channel name of YouTube will be Value Talks, and we have also created a Telegram channel by the same name, Value Talks. We'll be uploading various freebies, checklists, ebooks, and other valuable content which will be helpful for you to make better decisions in life in various important things. तो दोस्तों, आज का विषय होम लोन का है और हम सभी को कभी ना कभी होम लोन की जरूरत पड़ती है और पड़ती रहेगी. आज हमें पड़ रही है, कल हमारे बच्चों को पड़ेगी. लेकिन होम लोन के नाम पर जो तरह तरह से हम जो लोन प्रोवाइडर्स हैं, जो हमारी इग्नोरेंस का फायदा उठाते हैं, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे. आपको किस तरीके का लोन चाहिए, किससे लेना चाहिए, फ्लोटिंग होना चाहिए, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए या फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या आपको फ्लोटिंग रेट का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्रोसेसिंग फीस जायज है नहीं जायज है, ये इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर शिव यादव, who will be discussing with us all about variable home loans. Gentlemen and ladies and gentlemen, please welcome Mr. Shiv Yadav on the show. Welcome to Value Talk, Shiv. Thank you so much, Colonel Kochar, for having me here. Thank you, Shiv. Before we move on, let me share the profile, very impressive profile of Shiv. Shiv is an independent financial and mortgage loan advisor. He is based out of the city of Gurgaon, same as mine. He has over 15 years of experience in the financial industry. And before he started as an independent financial advisor, he worked with different banks after graduation. He provides a personal finance conceit proposition, offering a truly bespoke and individual service to private individuals, small and medium-sized companies throughout Delhi NCR. He offers a wide range of services, including home loans, loan against properties, business loans, OD. He helps clients by advising them in an effective and knowledgeable manner, and he believes in creating long-term relationships. In his 15 years as an independent mortgage loan specialist, he has gained a substantial amount of knowledge in all aspects of the market, and he refers to the loan application process as a financial and emotional minefield. His experience enables him to ensure clients get the most competitive product relevant to their circumstances and objectives and secure a loan offer as smoothly as possible. With his empathetic approach, he does all he can to deliver a friendly service throughout the process, right through to completion. So that was a introduction to Shiv. All I can say is that Shiv, as I have already mentioned, that he believes in creating long-term relationships. So Shiv, what do you have to say about home loans? सी सर, आज की टाइम में मतलब घर एक बड़ी बेसिक नेसेसिटी है. एंड आज को दिल्ली एनसीआर में अगर आपको कोई भी घर खरीदना है तो हम श्योर आप अपनी सेविंग से तो खरीद नहीं पाओगे. सो जो डिफरेंस है आपकी सेविंग्स का और कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी का, दैट इज लोन, दैट इज होम लोन बेसिकली. सो हाँ, क्योंकि अगर कोई आप घर खरीदना चाहते हैं और आपके पास जो सेविंग है, जो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी है, जब तक आप उतना पैसा इकट्ठा करोगे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ चुकी होगी, तो कहीं ना कहीं वो जो गैप है वो हमेशा वो गैप आपके साथ साथ ही चलता रहेगा अनलेस अनटिल कि आप कोई लोन अवेल ना करे. सो उस गैप को फुलफिल करने के लिए एक प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड हाउसिंग लोन.
ठीक है। और वो लोन किस तरीके से मिलता है, कहाँ से मिलता है, किस बैंक से लेना चाहिए, किन कंडीशंस पे लेना चाहिए, किस प्रोफाइल पे, कितने टेन्योर के लिए लेना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे थ्रू आउट दिस वेबिनार। राइट, मैं जैसे कि मैंने शुरू शुरू में बोला कि आहिस्ता चले जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाने बाकी हैं। ये कर्ज जो है ना, सबसे बड़ा कर्ज हमारी जिंदगी का, हर एक आदमी की जिंदगी का, आई थिंक एटलीस्ट इन मिडिल क्लास, जी। जो है वो होम लोन होता है। कभी ना कभी सब होम लोन लेते हैं, और जो फर्ज है निभाना बाकी है वो है कि हम अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा घर दे सकें। और उसके लिए आज का ये चर्चा है, जो ये विषय है, बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी शिव, होम लोन कब लेना चाहिए? मतलब मैंने देखा है लोग लोन लेते हैं, कई लोग बिना लोन के भी घर बना लेते हैं, कई लोग बिना घर बनाए लोन ले लेते हैं। तो मतलब सर, बगैर बिना जो होम लोन लेते हो तो कुछ अलग ही लोग होते हैं, तो उस बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। सब बात करते हैं कि लोन कब लेना चाहिए। जी देखिए, क्या है कि आज के टाइम में सर, जो यंगर जनरेशन है वो बड़ा टारगेटेड ओरिएंटेड है। और हर कोई एक अपना ना टारगेट प्लान करता है, कुछ इस एज में गाड़ी लेनी है, घर लेना है, जो शायद कुछ साल पहले शायद नहीं होता था। तो यूजुअली जो हमारे पास जो बोरवर्स होते हैं, जो पहला होम लोन ले रहे होते हैं या पहली प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं, दे फॉल्स अंडर 25 to 30 ईयर्स। ठीक है। बट उस टाइम पे उनकी अर्निंग कम होती है, उतनी सैलरी नहीं होती है। तो उनका जो ईएमआई बर्डन है उसको कम करने के लिए बैंक ने भी एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप लोन टेन्योर 30 साल तक का ले सकते हैं। तो अगर आप 30 की एज के हैं तो आप रिटायरमेंट एज 60 है, दैट मीन्स अगले 30 साल तक आप ईएमआई भर सकते हैं जब तक आप कमाएंगे। ठीक है। वो उसकी ईएमआई काफी कम होगी, रिपेइंग कैपेसिटी अगर आपकी कम है तो आप बड़ा इजीली लोन रिपे कर सकते हैं। तो यूजुअली ज्यादातर जो लोग हैं वो 25 से 30 साल के बीच में पहला होम लोन लेते ओके। हैं। और मतलब लोन लेने, अब मैं लोन लेने जाता हूँ, कोई भी आदमी जब लोन लेने जाता है तो वो क्या करता है? वो गूगल करता है। हम्म। ठीक है, फिर वो किसी, या वो अपने एग्जिस्टिंग बैंक से बात करता है। मैं, मेरा एक्सिस बैंक के साथ अकाउंट है तो मैं एक्सिस बैंक वाले से बात करूंगा, एक दो और से बात करूंगा, और इतने में ही मतलब वो हर एक आदमी जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हमारा जो लोन है वो सही है। सबसे बेस्ट है। तो एक आदमी जो लोन लेने जा रहा है वो किस तरीके से एक रिसर्च करे कि वो जो है वो ठीक लोन को आइडेंटिफाई कर सके? सर देखिए, क्या गूगल पे तो बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं। अगर आप गूगल के हिसाब से आपको सब कुछ करना होगा, आई एम श्योर फिर आपको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, कौन सी आपके काम की नहीं है, किसको आपको अडॉप्ट करना है, क्या नहीं करना है, वो डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है। वो तो गूगल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी बात करते हैं कि हर किसी का किसी न किसी बैंक में अकाउंट तो है ही। और इंडिया एक बड़ी डिजिटल ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो दैट मीन्स आज के टाइम में रूरल एरिया में भी जिन लोगों की इनकम काफी कम है, उनके भी बहुत सी स्कीम के अंडर अकाउंट्स हैं। तो हर किसी का कोई ना कोई एग्जिस्टिंग बैंकर तो है ही। जब भी आपको लोन लेना होता है तो सबसे पहले आपको दिमाग में आता है आपका एग्जिस्टिंग बैंकर। ठीक है। हो सकता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी बैंक फुलफिल कर दे। ऐसा नहीं है कि आपका बैंक आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता। हो सकता है बहुत अच्छी डील भी दे दे आपको, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बहुत अच्छी डील दे दे। बट ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है। राइट। नहीं भी जब हो सकता है तो फिर क्या ऑप्शंस हैं? ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप दर दर हर बैंक के दरवाजे पे जाइए और पता कीजिए कि कौन क्या दे रहा है, किसने क्या रेट दिया है, किसकी क्या पॉलिसी है। एक आप चार्ट ले लीजिए, आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, आप छुट्टी ले लीजिए 1 वीक की, और आप 6 दिन तक आप अलग अलग बैंकों में जाइए, पता कीजिए क्या रेट है उनके, क्या फीस है, क्या हिडन चार्जेस है। या दूसरा ऑप्शन जो है वो होता है हम जैसे लोग, जो एक कंसल्टेंसी है हमारी, या हम बैंकों के इम्पेनल्ड चैनल हैं। बैंक ने अपनी सेल्स को आउटसोर्स कर दिया है हम जैसी कंपनियों को, जो बैंक के बिहाफ पे ये सेल्स करती हैं। तो कस्टमर बैंक के दरवाजे पे ना जाए, हमारी टीम कस्टमर के दरवाजे पे जाती है, वहां बैठ जाती है, उनको बताती है कि सर ये बैंक ये रेट देगा, ये बैंक की इसका ये फीचर्स हैं, ये ये गवर्नमेंट। शिव शिव, मैं इस पे आऊंगा। हम्म। ये मेरा क्वेश्चन है, हम्म। जो कि मैं पूछूंगा कि मैं, हम्म। अब मैं बताता हूँ आपको बाद में समझ बात गया, करते मैं हैं समझ इसके गया, बारे में, ठीक है ठीक है? ठीक है। हम्म। मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं एज अ पर्सन जो कि लोन लेना चाहता है, हम्म। मेरे को कंसिडर क्या कंपेयर करना है? मतलब सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द ओनली थिंग? नहीं नहीं, और 2 3 चीजें हैं सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे मेन चीज है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको हर महीने देनी है। हर महीने आपको ईएमआई देनी है, और ईएमआई का रेट जो है वो आपके आरओआई से ही डिसाइड होगा कि आपको ईएमआई क्या देनी है।
तो ये तो एक बहुत ही गेम चेंजर चीज है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेक करना ही करना है कि क्या बेस्ट मिल रहा है। कुछ वन टाइम चार्जेस भी होते हैं, जैसे प्रोसेसिंग चार्जेस हो गई है, ठीक है, ये आपको वन टाइम चार्ज है, बट हर बैंक का अलग अलग चार्ज है। दूसरा एक होता है सर बैंक के कुछ जब आप उस लोन को प्री पे कर रहे हैं या उस लोन को पार्ट पे कर रहे हैं, तो बैंक आपसे कोई चार्ज ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो भी आपको देखना है। वो आपको हर महीने तो नहीं करेंगे, बट आप साल में एक बार या 2-3 साल में जब भी आपको लोन की पार्ट पेमेंट करनी है या लोन को प्री पे करना है, तो उसमें क्या हिडन चार्जेस थे, क्लोज थे, दैट इज समथिंग यू हैव टू इंश्योर एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ लोन एग्रीमेंट। तो मतलब देर आर सर्टेन थिंग्स जो कि मतलब सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अकेली चीज नहीं है। जी ठीक है। जी। अच्छा। एक एक बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सी मतलब ये डिसीजन जो है ये आदमी लेता कैसे है, मतलब आज की डेट में पहली बात तो आज की डेट में क्या फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है? हाँ, एग्जिस्ट करते हैं सर, बट फिक्स और फ्लोटिंग जो चूज करना है वो चूज करना है कि आप में कितना रिस्क एपेटाइट है। ऑल्दो फिक्स के जो आज के टाइम भी जो रेट चल रहे हैं वो फ्लोटिंग रेट से बहुत ज्यादा है, करीब करीब 3 से 4% ज्यादा महंगे हैं कंपेयर टू वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और साथ में ये भी है, जब भी आप उस लोन को बंद करेंगे तो उसमें एक फोरक्लोजर चार्जेस भी है, क्योंकि बैंक तो चाहेगा ही कि आपने जब एक फिक्स रेट एंजॉय किया है तो अगर आप उससे बाहर निकल रहे हो तो आप एक पेनल्टी के साथ वहां से बाहर निकल पाओगे। बट मैं बताऊं सर, पिछले 15 साल में मैंने बहुत लोन किए हैं, बट कभी भी मैंने कोई आज तक फिक्स रेट पे नहीं भेजा। अगर मैं आपको आज का फिक्स रेट बताऊं तो 10 से 12% के रेट चल रहे हैं अलग अलग। अच्छा। ओके। ओके, तो मतलब तो फिर ये तो मतलब बड़ा ऑब्वियस सा चॉइस हो गया कि आपको हमेशा फ्लोटिंग रेट ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट इज ही द करना बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। है। लेकिन शिव मेरा एक मतलब ये कैसे पता लगता है, मैंने कई बारी ये सुना है कि जब रेट बढ़ रहे होते हैं तब तो बैंक आपको फ्लोटिंग रेट के हिसाब से रेट बढ़ा देता है, लेकिन उसका जो अगर रेट घट रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसका फायदा वो पास ऑन करता है या नहीं करता है, और मतलब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सर देखिए, लोन जो देते हैं ना, लोन दो कंपनियां देती हैं। एक बैंक देता है जिनको आरबीआई गवर्न करता है, एक एनबीएफसी देती है, नॉन बैंकिंग कंपनी, जिनको एनएचबी गवर्न करती है। ठीक है। तो 2019 में सितंबर में आरबीआई कम्स अप विद द सॉल्यूशन ऑफ रेपो रेट। पहले क्या होता था, रेपो रेट कभी भी कम होता तो बैंक पूरे का पूरा बेनिफिट उस अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को पास ऑन नहीं करते थे। तो तो आरबीआई ने क्या किया कि रेपो रेट को ही एक्सटर्नल बेंचमार्क बना दिया, कि जो बेस रेट समझ लीजिए आप, बेस रेट रेपो रेट को ही बना दिया। जैसे आज अभी रेपो रेट है 4.9%। ठीक है। राइट। और अभी जो एवरेज रेट चल रहा है मार्केट में सर होम लोन का, दैट इज अराउंड 7.5%। ठीक है। तो बैंक क्या कर रहा है, रेपो रेट जो कि 4.9 है उसके ऊपर 2.6% का एक मार्जिन ऐड कर रहा है अपना, जिसमें उसकी कॉस्टिंग हो गई, उसकी अर्निंग हो गई, जो भी कुछ हो गया। ठीक है। तो आपका एप्लीकेबल रेट होगा 7.5%। अब ये जो 2.6 का मार्जिन बैंक ने ऐड किया है, दैट विल रिमेन सेम फॉर द एंटायर टेन्योर, ये चेंज नहीं होगा। अब रेपो रेट जब भी फ्लक्चुएट करेगा, वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसमें 2.6 ऐड हो जाएगा और आपका एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। लेट्स अज्यूम कि कल को बढ़कर अगर ये 5% हो गया रेपो रेट, तो आपका एप्लीकेबल रेट 7.6 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 7.5। ठीक है। बट सेम टाइम अगर ये घट के 4% हो जाएगा, तो भी आपका रेट जो है 4% प्लस 2.6, मतलब 6.6 आपका रेट हो जाएगा, जो कि अभी आज के टाइम में एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी बेनिफिट मिल रहा है उसका। बट बहुत से केसेज में होता क्या है सर, अब मान लीजिए अगले 1 साल तक रेपो रेट में कोई चेंज नहीं होता है, दैट विल रिमेन सेम एट द 4.9%। बट फिर भी क्या होगा कि आपने तो आज होम लोन लिया है 7.5 पे, ठीक है, बट हो सकता है कि 6 महीने बाद आपको पता चले कि वही बैंक, आपका ही बैंक, आपको 7.2 पे रेट ऑफर कर रहा है। आपको लगेगा कि भाई अब 30 पैसे कम क्यों दे रहा है। तो उसमें आरबीआई ने रेपो रेट चेंज नहीं किया है, उसमें बैंक के जो मार्जिन है ना सर, वो बैंक ने अपने मार्जिन रिड्यूस कर दिए हैं। तो मार्जिन के लिए हम उसको कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मार्जिन जब हमने लोन बोरो किया था वो फिक्स रहेगा, अनलेस अनटिल कि हम उसमें कुछ उनको रिक्वेस्ट करके चेंज ना कराएं। अदरवाइज दैट विल रिमेन एट 2.6%। बट अब क्या कर रहा है बैंक, 6 महीने बाद अपने मार्जिन कम करके जो 2.6 का मार्जिन था उसने 2.3 कर दिया, इसलिए नए कस्टमर का रेट 7.2 हो गया इंस्टेड ऑफ 7.5। तो आपका कहने का मतलब है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हम्म। एक्चुअली नेगोशिएबल है? नेगोशिएबल है एट द टाइम ऑफ डिसबर्सल, बिल्कुल नेगोशिएबल होता है, बट हाँ बहुत ज्यादा नहीं होता, 10-5 पैसे का नेगोशिएशन होती है जो कि आपको करनी होती है एट द टाइम ऑफ डिसबर्सल। जब आप लोन एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, तो जिस भी बैंक से आप लोन ले रहे हो आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हो, क्योंकि जो मार्जिन आपको तब मिल गया है ना सर, वो मार्जिन ही आपका फिक्स रहेगा फॉर एंटायर टेन्योर, अनलेस अनटिल कि आप उसमें कोई चेंज ना कराओ, कोई कन्वर्जन फीस देके बैंक को।
और ये अगर रेपो रेट चेंज हो जाता है तो उसके जो बेनिफिट है, अगर वो मतलब कम हो जाता है, तो उसका जो बेनिफिट है वो ऑटोमेटिकली पास ऑन हो जाता है कि बैंक को हमें कुछ बोलना पड़ेगा कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, सिंस इज लिंक टू रेपो रेट, सो दैट विल बी रिड्यूस ऑटोमेटिकली, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर बैंक का अपना अपना रीसेट टाइम है, कोई मंथली रीसेट कर देगा, कोई क्वार्टरली, 3 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा उसको रीसेट होने में, दैट्स फॉर श्योर। अच्छा। जी। एंड एंड जितने भी लोन्स हैं उनमें कई बैंक जो हैं वो प्रोसेसिंग फी चार्ज करते हैं, कई बैंक आपके इंश्योरेंस भी करवाना चाहते हैं। जी। मतलब ये स्टैंडर्डाइज क्यों नहीं है? मतलब स्टैंडर्डाइज है क्या? मतलब नहीं किसी नहीं, ये बैंक की स्टैंडर्डाइज प्रोसेसिंग नहीं फी है। ज्यादा है, एंड हम्म। इज आर दे सपोज टू चार्ज प्रोसेसिंग फी और वी कैन नेगोशिएट इट? एब्सोल्युटली सर, वी कैन नेगोशिएट इन प्रोसेसिंग चार्जेस, और ये भी फैक्ट है कि हर बैंक की अपनी अपनी अलग अलग तरह की प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, और वो प्रोफाइल के हिसाब से भी चार्ज करते हैं। सैलरीड को कम फीस चार्ज करते हैं कंपेयर टू सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है। तो जब सेल्फ एम्प्लॉयड जब एक लोन लेता है तो उसमें एक बड़ा बहुत ज्यादा नेगोशिएशन अवेलेबल होती है, क्योंकि यूजुअली बैंक 0.5% से स्टार्ट करते हैं और नेगोशिएट करते करते 0.2 0.1 तक आ जाते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर, किस तरह का लोन है, कौन सा बैंक है, इन सब पे डिपेंड करती है वो सारी चीजें। दूसरी आती है सर आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी दो तरह के होते हैं जिसके लिए बैंक पुश करते हैं। एक है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस विच इज मैंडेटरी काइंड ऑफ, मोस्ट ऑफ द जो बैंक्स हैं वो अपने सैंक्शन लेटर पे लिख के देते हैं कि यू हैव टू ऑप्ट दैट प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बेसिकली आपकी जो कंस्ट्रक्शन है प्रॉपर्टी की, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कवर करते हैं। ठीक है। लेट्स से गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज अराउंड 2000 पर स्क्वायर फीट। तो जो भी एरिया है आपके फ्लैट का या आपकी बिल्डिंग या जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई बाय 2000, उसके हिसाब से वो इंश्योरेंस कर देते हैं, जो बड़ा नॉमिनल आता है, विच इज एडवाइजेबल टू। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि अपना यहाँ पे ये एक बिल्डर की बिल्डिंग में कुछ हुआ था, आई डोंट वांट टू नेम हिम। तो उसमें जो भी क्लेम्स आए थे, अगर उनकी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड थी तो उन लोगों को क्लेम मिला है। ऐसे कुछ साल पहले चेन्नई में फ्लड भी आया था 2015 में, तो वहां पे भी लोगों को क्लेम मिले थे। सो विच इज एडवाइजेबल। सेकंड जो एक इंश्योरेंस होता है वो लाइफ इंश्योरेंस होता है। बैंक बड़ा पुश करते हैं उसके लिए, क्योंकि बैंक का अच्छा खासा रेवेन्यू लिंक होता है उस इंश्योरेंस से, उसका प्रीमियम भी अच्छा खासा होता है। डिसएडवांटेज ये है सर कि उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है, बैंक को भी अच्छा कमीशन जाता है उसमें। बट उसका फायदा ये भी है कि खासकर कोविड टाइम में कुछ बोरोवर्स थे जो जो जिनकी रिपे जो लोन रिपे कर रहे थे वो नहीं रहे उस टाइम में। जिन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ था उनका लोन ऑटोमेटिकली रिपे हो गया, उनकी फैमिली पे कोई बर्डन नहीं आया। बट जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया तो उनकी फैमिली स्ट्रगल कर रही है, या तो बड़ी मुश्किल से रिपे कर पा तो रही है। बट ये जो मैं समझ गया आपकी बात कि अगर मतलब वो लोन अगर इंश्योर्ड है तो क्या कहते हैं, अगर बाय चांस कुछ हादसा हो जाता है तो आपकी फैमिली के ऊपर वो लोन लाइबिलिटी नहीं रिपेमेंट आती का है। बर्डन नहीं आएगा। जी। राइट। जी। लेकिन लेकिन अगर इज इट मैंडेटरी, नो कैन नो नो, कैन एब्सोल्युटली बैंक? नॉट। Absolutely ओके। not, sir. Absolutely. It's not mandatory. It's purely optional. And it's need to be decided by the borrower कि उसकी ऑलरेडी इंश्योरेंस क्या हो रखी है, उसकी ऑब्लिगेशन क्या। अगर उसने पहले अपने टर्म लोन ले रखे हैं, उसने किसी ने 5 करोड़ के टर्म लोन ले रखे हैं, 2 करोड़ का लोन ले रहा है, तो उसको शायद जरूरत नहीं है। उसको अपना एनालाइज एक्चुअली बोरोवर को करना होता है, बैंक नथिंग टू डू विद दिस, ना ही और आपको ये जो फोर्स कर सकता है। प्रोसेसिंग फी वगैरह बैंक चार्ज करते हैं, हम्म। मिसलिनियस फी भी होती है कई बारी, तो बताया मतलब इट इज टर्म्ड एज मिसलिनियस फी समटाइम्स। तो मतलब हाँ। हु इज सपोज टू कवर दो स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस? मैं अपनी मतलब मैं लोन ले रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी के पेपर्स भी उन्हीं के पास होते हैं। जी। ठीक है। जी। तो समटाइम्स वो इंश्योरेंस भी करवा देते हैं, उसके हम्म। बावजूद भी हमसे सब चीजों के पैसे भी मांग रहे हैं। तो मतलब हम्म। व्हाट आर माय राइट्स? मतलब मैं उनसे कैसे ये कम करवा सकता हूँ? सर देखिए, बेस्ट ये होता है जब आप लोन एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं या सैंक्शन लेटर को एक्सेप्ट, कोई भी बैंक आपको लोन दे रहा है तो आपसे सैंक्शन लेटर टर्म एंड कंडीशन साइन कराता है बड़े अच्छे से। तो वो चीजें हैं उसमें, एक सीट होती है जिसमें चार्ज सीट होती है, उसमें बैंक के सारे चार्जेस होते हैं, इंक्लूडिंग डिसओनर ऑफ ईएमआई, रिपेमेंट शेड्यूल के क्या चार्जेस हैं, ये सब चीजों की डिटेल होती है, वो आपको बड़े अच्छे से पढ़नी चाहिए। बाकी उस लोन एग्रीमेंट में कुछ इतना ज्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है। तो वो अगर आपने चीजें पढ़ी हैं तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं, अगर कोई गलत चार्जेस लगे हुए हैं तो। चार्ज शीट। चार्ज सीट होती है लोन एग्रीमेंट में, तो आई होप द पर्टिकुलर चार्ज व्यूअर्स आर शीट। लिसनिंग कि किसी भी लोन अग्रीमेंट पे साइन करने से पहले आपको चार्ज शीट को पढ़ना बहुत जरूरी है। यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट ऑल चार्जेस बैंक जो है वो आपके ऊपर लगा रहा है, एंड उसमें से किस किस चीज पे आप नेगोशिएट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी आपने अभी सुन लिया है। राइट, या प्लीज गो अहेड।
तो कुछ बैंक यूजुअली खासकर पीएसयू बैंक जो होते हैं सरकारी बैंक, वो प्रॉपर्टी विजिट के नाम पे क्वार्टरली चार्ज ले लेते हैं, साल में एक बार चार्ज ले लेते हैं, प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन के चार्जेस ले लेते हैं। कुछ बैंक आपको प्रॉपर्टी पेपर वापस करने के रिट्रीवल के नाम पे चार्जेस ले लेते हैं। तो हर बैंक के कोई ना कोई चार्जेस लेने के तरीके होते हैं, तो वो सब आपको एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ लोन एग्रीमेंट यू हैव टू इंश्योर कि हाँ चीजें वहाँ पे इस तरह की कोई है नहीं है। अगर है तो आप वो नेगोशिएट कर सकते हैं, आप उनके लिए बात कर सकते हैं अपने बैंक से। ओके। तो एक और चीज होती है कि लोन एलिजिबिलिटी। जी तो कई बारी मैंने देखा है कि बहुत अच्छा खासा अ, आदमी भी जो है, इंसान भी जो है, जो कि मतलब ठीक ठाक कमा रहा है, मतलब आई मीन टू पीपल जिन जो कि सेम एज ब्रैकेट एंड सेम इनकम ब्रैकेट में है, उसके बावजूद भी एक की एलिजिबिलिटी कम होती है, दूसरे की एलिजिबिलिटी ज्यादा होती है। तो एक तो ये क्यों है, और दूसरा अपनी एलिजिबिलिटी को आदमी कैसे बढ़ा सकता है? सर देखिए, उसके भी दो तीन एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन के दो तीन पैरामीटर है। एक तो ये होता है कि हर बैंक की एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन का मेथड जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपने एक्स बैंक से लोन लिया है, तो आपने उसको आपको उस बैंक ने हो सकता है 1 करोड़ का लोन दिया हो, सेम सेट ऑफ फाइनेंशियल पे दूसरा बैंक आपको हो सकता है कि 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 15 लाख भी दे दे। ठीक है, ये उस बैंक की एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। आप एलिजिबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? सर देखिए, अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए महीने का कमाता है तो यूजुअली बैंक जो है वो 60 से 65% की उसकी ईएमआई बनाते हैं, जिनको हम फोयर बोलते हैं अपनी टर्म्स में, फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। दैट मीन्स कि 1 लाख रुपए कमाने वाला इंसान 65 हजार रुपए की ईएमआई दे सकता है एज पर आर बैंकिंग नॉर्म्स। सो आप ईएमआई तो 65 हजार की ही दे सकते हो एक महीने में। अब 65 हजार की ईएमआई के बदले में आपको लोन कितना मिलेगा, ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम आपके टेन्योर से। अगर जितना लंबा टेन्योर हम आपको देंगे तो आपको उतना लोन अमाउंट ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि जो पर लाख ईएमआई होती है, जितने लंबे टेन्योर होगा वो उतनी कम होगी, तो आपका लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो टेन्योर का एक्सटेंशन आपके लोन एलिजिबिलिटी बढ़ा सकता है। आप बोलोगे कि मुझे 65 हजार की ईएमआई में लोन भी 65 लाख चाहिए और 5 साल के लिए चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन उसके अलग वो भी तो है, मतलब दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई लोन का टेन्योर होना कितना चाहिए? सर आइडियली 15 to 20 years। सो यूजुअली 70% ऑफ बोरोवर ऑप्ट 20 years, बट 15 साल भी एक अच्छा टेन्योर है। अच्छा। और प्री पेमेंट, डज इट मेक सेंस? एब्सोल्युटली प्रीपेमेंट डज मेक सेंस। प्रीपेमेंट के चार्जेस तो कुछ है नहीं है अभी अब होम लोन में, क्योंकि तो आरबीआई ने बंद किया हुआ है, कोई चार्ज नहीं लेगा आपसे। बट जब भी आप पार्ट पेमेंट आप, सर मैं क्या एडवाइस करता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है कि आप कोई भी फिक्स कमिटमेंट को अपना कम से कम रखिए। मैं कहूंगा कि आप अपना 20 साल का लोन टेन्योर लीजिए, जिससे आपका जो फिक्स कमिटमेंट है वो कम से कम रहे। जब भी आपके पास सरप्लस फंड है, साल में 6 महीने में जो भी कुछ इकट्ठा हुआ, आपको लग रहा है कि मेरे पास एक्सेस फंड है, वो आप पार्ट पेमेंट कर दीजिए। और जब भी आप पार्ट पेमेंट कर रहे हो तो दैट विल हेल्प यू टू रिपे योर लोन फास्टर। एक एक और चीज इसी में होती है, मेरे साथ भी जी हुई थी, जी कि जब आप पार्ट पेमेंट करते हो तब भी आपको एक ऑप्शन होती है कि आप अपनी लोन टेन्योर को कम करना चाहते हैं, या क्या कहते हैं, मतलब ईएमआई को। एक ईएमआई को। हाँ जी। जी, जब भी आप पार्ट पेमेंट करते हो तो बैंक आपको दो ऑप्शन देता है, इधर यू कैन रिड्यूस योर ईएमआई और टेन्योर। ठीक है सर, अब आपको आपको क्या चूज करना है, ये आपकी फाइनेंशियल डिपेंड करता है कि आपके फाइनेंशियल्स क्या है, आपकी इनकम क्या है, अभी आप किस फाइनेंशियल स्टेटस में है, आप इजीली रिपे कर पा रहे हैं अपनी एग्जिस्टिंग ईएमआई या नहीं। अगर आप इजीली पे कर पा रहे हैं उस ईएमआई को, कोई बर्डन नहीं है आप पे, तो आप फिर टेन्योर कम कराइए अपना। बिकॉज टेन्योर जितनी जल्दी आप जितना जल्दी आप कम कराओगे अपना लोन भी, आप उतनी जल्दी रिपे कर पाओगे। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 करोड़ का लोन है, आप 10 लाख रुपए की पार्ट पेमेंट कर रहे हो, आपने 20 साल के लिए अगर वो लोन लिया था, तो 10 लाख के पार्ट पेमेंट पे करीब करीब आपकी 7-8 हजार रुपए महीने की ईएमआई कम होगी। बट टेन्योर आपका 3 से 4 साल कम हो जाएगा। तो इट इज एडवाइजेबल टू रिड्यूस द टेन्योर इंस्टेड ऑफ द ईएमआई। ओके, इट्स एडवाइजेबल टू रिड्यूस द टेन्योर। एब्सोल्युटली। बट हाँ, आपके आपके फाइनेंशियल्स क्या है, दैट इज समथिंग यू नो बेटर, तो वो आपको डिसाइड करना होता है। राइट राइट राइट। एंड एक लोन रीफाइनेंसिंग भी होता है। लोन रीफाइनेंसिंग क्या है? सर देखो, लोन रिफाइनेंसिंग अलग अलग लोन में अलग अलग तरीके से होता है। अगर मैं ऑटो लोन की बात करूं, तो आपने ऑटो लोन लिया था, वो लोन आपने 4-5 साल का लिया था, 4 साल रीपे कर दिया है, तो बैंक आपके अपने अच्छे ट्रैक के ऊपर वापस उतना पैसा फिर से आपको दे देगा। ये भी रिफाइनेंसिंग होता है। एक रिफाइनेंसिंग ये होता है सर कि आपने कोई प्रॉपर्टी अपने पैसे से खरीद ली है, अभी आपको बड़ी जल्दी खरीदनी थी, उस टाइम आपका लोन हो नहीं सकता था या टाइम लग रहा था, कुछ भी था,
बट सिंस आपने जैसे तैसे करके प्रॉपर्टी परचेज की है, बट जो पैसा आपने उसमें लगाया अब आपको उसको पैसा रिफाइनेंस चाहिए, उसको भी हम रिफाइनेंसिंग बोलते हैं। हम लोन प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद भी हम लोन सैंक्शन करते हैं, विद इन सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड आप प्रॉपर्टी पेपर हमें दे दीजिए, वो जो पैसा आपने सेलर को दिया है बैंक आपको उसका 75 to 80% पैसा आपको वापस दे देगा, वो भी रिफाइनेंसिंग ही बोला जाता है। तो रिफाइनेंसिंग सर डिपेंड करता है किस प्रोडक्ट तो में है। ये जो आपने अभी बोला, जैसे कि सपोज मैं घर खरीद रहा हूँ, लोन हम्म। अप्रूव होने में टाइम लग रहा है, हम्म। तो मैंने किसी तरह अरेंज पैसे करके जुगाड़ रखा किए, रखा है। पैसे जुटाए और वो दे दिए, जी। घर खरीद लिया, और उसके बाद मैं होम लोन अप्लाई कर सकता हूँ? यूजुअली बैंक विद इन 6 मंथ रिफाइनेंस कर देते हैं, अगर आपने 6 महीने में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई है और 6 महीने में वो पैसा सेलर को आपके अकाउंट से निकला था, डेबिट हुआ था, तो आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। अपने अकाउंट से पैसा जाना चाहिए, वो पहली कंडीशन ये होती है बैंक की, आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। जो जो चेक्स या डीडी जो सेल डीड में मेंशन है वो बैंक टैली करेगा कि हाँ ठीक है ये सब आपके अकाउंट से डेबिट हो गए थे, तो उसका 70 to 80% आपको रिफाइनेंस दे देगा एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अच्छा, उसमें भी जो रिबेट्स होती है अंडर सेक्शन 24B एंड 80C वो भी एप्लीकेबल होंगी आपकी। एप्लीकेबल होती है। एब्सोल्युटली सर। अच्छा, ये एक और चीज होती है जो इनफैक्ट मैं भी एक बारी बना था गारंटर, या एक होता है को बोरोवर, एक होता है गारंटर। जी। तो को बोरोवर तो ठीक है, मतलब पहली बात तो को बोरोवर जो है, अगर मैं हूं और मेरी वाइफ है, अगर हम दोनों लोन ले रहे हैं, वी कैन बी को बोरोवर्स, तो मतलब हम एब्सोल्युटली। दोनों की लायबिलिटी जो है वो इक्वल होती है, बिल्कुल या इक्वल को होती है, बहुत बोरोवर सर। में भी लायबिलिटी डिफरेंट हो सकती है? नहीं नहीं सर, बोरवर को बोरवर हैव द इक्वल लायबिलिटी ऑफ रिपेमेंट वर्सेस लोन। अच्छा, तो को बोरोवर जो है उसकी भी इनकम वो जो है स्टेटमेंट वगैरह जाती हैं उसमें? सर यूजुअली बैंक जो होते हैं को बोरोवर ब्लड रिलेटिव ही हो सकता है, मतलब हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, भाई दो भाई हो सकते हैं, फादर मदर हो सकते हैं। यूजुअली जो बैंक्स हैं वो को बोरोवर ब्लड रिलेटिव को ही बनाते हैं, वो लोग कुछ पीएसयू बैंक है जो दोस्तों को भी ले लेते हैं, बट ज्यादातर बैंक अवॉइड करते हैं। ठीक है, उनमें हम उनकी इनकम भी ले सकते हैं जस्ट टू इनहेंस द एलिजिबिलिटी। अगर आप और आपकी वाइफ दोनों वर्किंग है तो मैं दोनों की इनकम कंसिडर कर लूंगा एलिजिबिलिटी के लिए, दोनों के फाइनेंशियल आएंगे। प्रॉपर्टी भी आप चाहो तो ज्वाइंटली ले सकते हो या सिंगल भी ले सकते हो। ये तो हो गया को बोरोवर। सो को बोरोवर तो हो गया सर ये, जिसमें हम जिसकी इनकम भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी में ओनरशिप भी उनकी हो सकती है को बोरोवर की। सेकंड जो गारंटर होता है, गारंटर कोई भी हो सकता है सर, वो आपका ब्लड रिलेटिव भी हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है। अब गारंटर भी दो तरीके के होते हैं सर। एक गारंटर होता है फाइनेंशियल गारंटर, जिसकी इनकम है, बैंक देखता है कि जितनी इनकम आपकी है उसकी भी उतनी इनकम है या नहीं है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट वो बंदा आपका जो लोन है वो रिपे कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो होता है फाइनेंशियल गारंटर। बैंक उसमें उसकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी पूरी अच्छे से वेरीफाई करता है, सारे फाइनेंशियल पेपर देखता है कि हाँ उसकी उतनी इनकम है या नहीं है। दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल गारंटर, उसमें उसकी रिपेइंग की कैपेसिटी तो नहीं है उस बंदे की उतनी कि वो लोन रिपे कर सके, बैंक चेक तो नहीं करता है ये, बट बैंक एज ए गारंटर उसको लोन पे ले लेता है कि कल को इन केस ऑफ डिफॉल्ट बैंक के पास एक और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है जिसके घर पे वो जाके आपकी लोन की रिकवरी के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, बट एक्चुअली देखा जाए तो कल को वो जो गारंटर है जो नॉन फाइनेंशियल है वो उस चीज को कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकता है, क्योंकि वो तो बोल लेगा कि जी मेरी तो इतनी रिपेइंग कैपेसिटी नहीं है, मैं लोन पे गारंटर जरूर हूँ बट मैं उतना कमाता नहीं हूँ जितना मुझे इनकी ईएमआई देनी है, बट फिर भी उसकी लाइबिलिटी उस लोन की रिपेमेंट के लिए होती है। है उसकी लायबिलिटी? एब्सोल्युटली सर, लाइबिलिटी बराबर लाइबिलिटी है उसकी। तो अगर कोई डिफॉल्ट कर जाता है, मतलब होम होम लोन में मैंने लोन लिया और मैंने डिफॉल्ट कर दिया, मतलब ईएमआई पेमेंट बंद हो गई, ठीक है, तो क्या होता है मतलब? सर देखिए, इनिशियल फेज में तो बैंक की जो रिकवरी टीम होती है वो आपको अप्रोच करती है, ईएमआई कलेक्शन के लोग आते हैं आपसे ईएमआई कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक करते हैं, 2 महीने 3 महीने, फिर आपका अकाउंट एनपी क्लासिफाइड हो जाता है। एनपी क्लासिफाइड होने के बाद फिर बैंक आके आपकी प्रॉपर्टी पे सिंबॉलिक पोजीशन लेता है, सरफसी की सारी एक्टिविटीज प्रोसेस में डालता है, न्यूज पब्लिकेशन में डालता है, जो भी सरफसी की जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो कोर्ट से परमिशन लेके आता है। उन सब चीज़ों पे उनकी लीगल टीम जो होती है बैंक की वो पूरे केस को टेक ओवर कर लेती है और फिर आगे सारी प्रोसीडिंग्स को देखते हैं। वो आके फिर आपकी प्रॉपर्टी पे सरफेसी नोटिस लगते हैं, फिर वो पब्लिकली उनका बैंक, हर बैंक के आज के टाइम में अगर अलग ऑनलाइन ऑक्शन होते हैं, ऑक्शन में लेकिन चली जाती है प्रॉपर्टी। कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, आदमी फंस जाता है। मैंने एक बार आप एक क्वेश्चन भी भेजा था आपको, हम्म। तो
कई बार आदमी की हो सकता है कोई फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी रही हो या उसकी हेल्थ कंडीशन ऐसी रही हो कि बाय चांस 3-4 EMI 5 EMI जो हैं वो नहीं गई, हम्म। तो मतलब वो अपने आप को इस सिचुएशन से रिट्रीव कैसे कर सकता है, मतलब नहीं सर, ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में ऐसा भी नहीं है कि आपने 3 महीने नहीं दे पाई तो फिर आपकी प्रॉपर्टी बिकी जाएगी चौथे महीने, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ इश्यू है आपके साथ तो सबसे बेटर तो ये, जो भी आपका बैंकर है आप वहाँ पे जाइए और अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कीजिए, उसके रिलेवेंट प्रूफ उनको दीजिए। मतलब एंड ऑफ द डे आपको थोड़ा ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा उन पे कि हाँ ये सब चीजें मेरे साथ हो रही है। आप ओके। उनको रिटर्न आपसे अंडरटेकिंग लेंगे, एप्लीकेशन लेंगे, जो भी लेंगे, और आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड देंगे वो कि ठीक है आप इतने टाइम में करा दें। बट ऐसा नहीं है कि 3 महीने हो गए आपका अकाउंट एमपी हो गया तो चौथे महीने आके आपकी सर्विसिंग नोटिस लग जाएंगे, 5वें महीने आपकी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। एक एक और चीज मैंने जो नोट करी है वो शिव की, बैंक जो है 75% ऑफ द इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो पहले 10 साल में ही ले लेते हैं। जी। हैं? जी। या क्या करते हैं कि वो इंटरेस्ट जो है वो इनिशियल फेज, मतलब ईएमआई की रीपेमेंट की इनिशियल फेजेस में ही इंटरेस्ट कंपोनेंट ले लेते हैं, मतलब ये क्यों है? सर ये इसलिए है, इट्स ए मैथमेटिक कैलकुलेशन। ऐसा नहीं है कि बैंक यहाँ पे कोई चीटिंग कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा आपको कि आपने लेट्स अज्यूम कि 10 लाख रुपए बोरो किए कहीं से, बैंक से नहीं किए सर, मैं कहता हूँ ओपन मार्केट से किए हैं, और एक 24-24% पर एनम के इंटरेस्ट पे आपने 10 लाख रुपए बोरो कर लिए। अब आप उस जिससे भी आपने बोरो किए, हर महीने आप उसको इंटरेस्ट चालू कर रहे हैं। तो 10 लाख का इंटरेस्ट सर पर मंथ होता है 20,000 रुपीज। आपने 6 महीने तक आप उस बंदे को 20,000 रुपीज देते रहे। 7वें महीने आपने क्या, छठे महीने जब इंटरेस्ट दिया आपने, तो आपने क्या किया है कि 20,000 इंटरेस्ट भी दिया प्लस 5 लाख रुपए उनको एज ए प्रिंसिपल वापस कर दिया। ठीक है सर। अब 7वें महीने के इंटरेस्ट का जब टाइम आया देने का, तब आपने उसको 20,000 रुपए तो नहीं दिए। अब आपने क्या किया, 5 लाख का 24% के हिसाब से उनको 10,000 रुपए दिए। अब आप उनको ये बोलोगे कि सर आपने तो शुरू में मेरे से 20-20 हजार रुपए ले लिए, अब आप 10,000 रुपए ले रहे हो, आप ये चीटिंग कर रहे हो। एक्चुअल में क्या हुआ है सर कि जब वो आप 20,000 रुपए दे रहे थे, दैट मीन्स कि आपके पास उस लेंडर का बोरोइंग्स आपके पास ज्यादा थी। आपने 20 लाख रुपए बोरो कर रखे थे, सॉरी 10 लाख रुपए बोरो कर रखे थे। आप आज आपने 5 उनको वापस कर दिए तो इंटरेस्ट 5 पे लग रहा है। बैंक भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। आपने शुरू में 1 करोड़ का लोन लिया है सर 9% के रेट पे, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि आपकी 1 लाख रुपए की ईएमआई जाती है। तो 1 लाख रुपए की ईएमआई में 75,000 रुपए का तो इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 9%। 25,000 रुपए का प्रिंसिपल जा रहा है सर। पहले महीने आपकी ईएमआई आपने रीपे कर दी 1 लाख रुपए बैंक को, तो उसमें से 75,000 रुपए तो इंटरेस्ट पे सेट ऑफ हो गए। जो 25,000 रुपए आपने जो दिए हैं, दैट विल बी एडजस्टेड एज ए पार्ट पेमेंट इन योर प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। तो 1 महीने की ईएमआई जाने के बाद अब आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 1 करोड़ रुपए नहीं रह गया है। अब आपका प्रिंसिपल रह गया है 99,75,000 रुपीज। अब दूसरे महीने जो बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा वो 1 लाख पे कैलकुलेट नहीं करेगा सर, अब वो कैलकुलेट करेगा 99,75,000 पे। तो जो इंटरेस्ट आपका पहले महीने 75,000 रुपए गया था, अब आपका इंटरेस्ट 74,800-900 रुपए कुछ जाएगा। तो ऐसे ही आपका जो इंटरेस्ट है वो हर महीने कम होता रहेगा। पहले महीने बैंक ने इंटरेस्ट ज्यादा लिया क्योंकि बैंक का पैसा भी आपकी तरफ ज्यादा था। तो इसलिए ऐसा होता है कि शुरुआत में बैंक का इंटरेस्ट ज्यादा हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमारे पास उसकी बोरोइंग्स आउटस्टैंडिंग भी ज्यादा है। दैट इज द ओनली रीजन। बैंक ओके। बैंक रिड्यूसिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, फ्लैट नहीं होता है सर। इसलिए बोलते हैं कि ईएमआई जो होती है वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होती है। हर महीने बैंक का जो इंटरेस्ट है वो रिड्यूस होता रहेगा क्योंकि आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग भी रिड्यूस हो रहा है अकॉर्डिंग। ओके। दैट इज द एंड रीजन सर। एंड यू नो प्राइवेट बैंक्स या पीएसयूज? सी इट्स डिपेंड सर। ऑल्दो आज के टाइम में पीएस पहले पीएसयू बैंक की सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं थी, आज अभी थोड़ा सर्विसेज में काफी काम कर रहे हैं। बट स्टिल अभी भी काफी ज्यादा स्कोप है इम्प्रूवमेंट के। बहुत से बैंकों की ऑनलाइन सर्विस उतनी अच्छी नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशंस नहीं है। होम लोन में हालांकि बहुत ज्यादा इन सर्विसेज की जरूरत होती नहीं है, आपको साल में एक बार इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कभी कभार आपका अमाउंट शेड्यूल चाहिए होता है, या कभी साल में 1 या 2 बार आपको पार्ट पेमेंट करनी होती है। बट वो सर्विसेज थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है अभी भी पीएसयू बैंक की। और प्राइवेट बैंक्स में वो सर्विसेज बड़ी अच्छी हैं, मोबाइल बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है। और ज़्यादातर जो सैलरीड क्लास अगर कस्टमर है उन सबके ज़्यादातर अकाउंट्स भी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक में ही होते हैं। तो उनके लिए और ईजी हो जाता है अपने अकाउंट को, लोन अकाउंट को और कार्ड्स को। क्योंकि पीएसयू की अगर मैं बात करूँ तो कार्ड्स में भी उतने ज़्यादा पीएसयू नहीं है, बड़े गिने चुने पीएसयू बैंक है जो क्रेडिट कार्ड देते हैं। तो प्राइवेट बैंक के ज़्यादा कार्ड होल्डर हैं, अकाउंट होल्डर हैं, लोन होल्डर हैं, तो थोड़ा ईजी हो जाता है अकाउंट को मेंटेन करना। और मैं चार्जेस की भी बात करूँ तो भी प्राइवेट बैंक्स आर वेरी कॉम्पिटेटिव इन टर्म्स ऑफ चार्जेस। इस तरह की कोई हिडन चार्जेस होते नहीं अनलेस अनटिल कि आपने चीजें शुरू में अच्छे से पढ़ी हैं। तो बाद में इस तरह की कुछ ऐसा आता नहीं है कि कोई ऑल ऑफ सडन को नया चार्ज लग के आ गया, ये कहाँ से आ गया। अब मैं वो क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपने बीच में शुरू किया था प्लीज। कि
मैं मैंने आपका वो पढ़ा था प्रोफाइल, आप एक्सिस बैंक के साथ काफी, आप एक्सिस बैंक के उसमें डील करते हैं मेनली, राइट? एम आई राइट? जी। अच्छा, तो आप, मैं एक्सिस बैंक के पास डायरेक्टली क्यों ना जाऊं? मैं आपसे क्यों होम लोन लूं? या मतलब पीपल लाइक यू, आपकी कंपनी से मैं क्यों बात करूं होम लोन लेने के लिए, जबकि एक्सिस बैंक से मैं डायरेक्टली ले सकता हूं? बिल्कुल सर। सर देखिए, उसके दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर बैंक खुद ही सब कुछ कर रहा होता तो हमें एज ए चैनल अपने साथ एसोसिएट नहीं करता। और मैं एक अगर आपको डेटा दूं तो इंडिया में जितने भी मेजर लैंडर है उनकी 60% जो बिजनेस सोर्सिंग है वो हम जैसी कंपनीज करती हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि आप बिल्कुल बैंक के पास जा सकते हैं, क्योंकि आपका, मैंने जैसे शुरू में बताया था कि आपका भी किसी न किसी बैंक में कोई अकाउंट होगा। ठीक है, एक्स बैंक में आपका अकाउंट है, लेट्स अज्यूम कि एक्सिस बैंक में ही आपका अकाउंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक्सिस बैंक को ही अप्रोच करेंगे लोन के लिए। हो सकता है कि जिस तरह का आपको लोन चाहिए, जिस तरह की कंडीशंस पे चाहिए, जिस रेट पे चाहिए, जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, वो एक्सिस बैंक आपको लोन दे दे। ठीक है, बट ये नहीं भी हो सकता है। ये नहीं भी जब हो सकता है ना सर, तब हम जैसे लोगों की जरूरत होती है। क्योंकि अब आप एक्सिस के अलावा आप कितने बैंकों में जा सकते हैं? आप एचडीएफसी में जाओगे, आईसीआईसी जाओगे, कितने बैंकों में जाओगे आप? फिर भी हो सकता है कि कोई ऐसा बैंक हो जहां पे आप नहीं गए हो और वो बैंक आपको सबसे अच्छी डील दे सकता था। वो बैंक मैं या मेरे जैसी जो कंपनीज है वो आपके सामने लेके आ सकती है कि सर आपकी ये रिक्वायरमेंट है, ये बैंक आपको सबसे बेस्ट रेट देगा कंसिडरिंग योर रिक्वायरमेंट, प्रॉपर्टीज, एलिजिबिलिटीज, एवरीथिंग। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, आपने खुद ही पूछा था सर कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही एज ग्रुप के लोग, एक ही इनकम, फिर भी उनकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है। वो सर इसीलिए ही होती है क्योंकि मुझे पता है कि आपको ज्यादा लोन चाहिए, मुझे पता है कि कौन सा बैंक आपको मैक्सिमम लोन दे सकता है। जरूरी नहीं है कि जिस बैंक में आप गए हो वो आप वही आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी हो। ठीक है। लेकिन लेकिन शिव, कैच कहाँ है? मतलब मैं एक्सिस बैंक के पास डायरेक्ट जा रहा हूँ, हम्म। विज अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सिस बैंक ज्यादा बेहतर रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा कि आप? देखिए सर, लोन बैंक को ही देना है एंड ऑफ द डे। मैं भी लोन आपका बैंक से ही करा के दूंगा, मेरी कोई पर्सनल लेंडिंग नहीं है जो मैं आपको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दूंगा। और जो फीस भी चार्ज करता है बैंक ही चार्ज करता है, बैंक को ही जाना होता है। नेट सेल में जो प्रोडक्ट है वो बैंक का ही है, मेरा प्रोडक्ट नहीं है वो। ठीक है, आई एम जैसे सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप एक्सिस, मैं भी एक्सिस से देना चाहता हूँ और आप डायरेक्टली एक्सिस से गए हो तो आप एक्सिस से ले लोगे, कोई इशू नहीं है सर। 40% लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। मैं नहीं नहीं, सिक्सटी आपने परसेंट पे आपने टारगेट कर। डक कर दिया मेरा क्वेश्चन एक्चुअली। नहीं नहीं, आप दोबारा आप पूछ नहीं, लीजिए सर, सवाल आंसर। मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा है जी कि मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बेहतर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं बैंक के मुकाबले? सर, मैं ये सवाल का जवाब मैंने स्टार्टिंग में ही दिया था कि हमेशा एक नेगोशिएशन का ना ऑप्शन अवेलेबल होता है, एक स्कोप होता है, देयर इज स्कोप ऑफ नेगोशिएशन। वो कैसे मिल सकता है आपको, वो आपकी नेगोशिएशन स्किल्स पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत अच्छे नेगोशिएशन, मुझसे भी अच्छी नेगोशिएशन कर सकते हो तो आपको हो सकता है आप बैंक से डायरेक्टली मेरे से अच्छा रेट ले आओ। बट अगर आप नहीं कर सकते हो तो आई विल नेगोशिएट ऑन योर बिहाफ। जो मैं आपको रेट दूंगा, हो सकता है वो रेट आपको डायरेक्टली बैंक से भी मिल जाए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। बट देयर इज चांसेस कि वो रेट शायद बैंक से आपको ना मिले। क्योंकि मुझे पता है कि क्योंकि कोई भी सर बैंक है या कोई भी कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट बेच रही है, वो आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगी कि सर मैं इतना इसको ना यहाँ तक कम कर सकता हूँ। हर कोई शुरुआत में अपना एक जो एवरेज रेट है वही ऑफर करते हैं। जैसे मैं एक्सिस बैंक की बात करता हूँ, आज एक्सिस बैंक का अगर कल होम लोन सैंक्शन लेते हो आप, तो आपके रेट पे ना 7.7 या 7.8 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, जो कि एक्चुअल में नहीं है। जब आपका लोन डिसबर्स होगा तो 7.5 या 7.60 के आसपास हो सकता है। बट लेटर पे उन्होंने 7.80 लिख के दिया आपको, क्यों? बिकॉज देयर इज स्कोप ऑफ नेगोशिएशन। अगर आप 7.80 पे एग्री कर गए तो आप ले लोगे लोन। अगर आप नहीं करोगे एग्री तो नेगोशिएशन करेंगे। और आपने नेगोशिएशन नहीं किया और मैं उस लोन को प्रोसेस कर रहा हूँ तो आई कैन नेगोशिएट ऑन योर बिहाफ। Gentlemen, please note that you have the power of negotiation, and you must negotiate. And of course, if in case you think you cannot negotiate better than Shiv or companies like Shiv's, so then you can always take their services. But there is a scope for negotiation. Bank may say anything, but there is always a scope for negotiation. तो शिव, मुझे ये बताएं कि मैंने आप मुझे सपोज 7.5 दे रहे हैं और बैंक मुझे 7.5 दे रहा है, तो व्हेन इफ आई टेक इट फ्रॉम यू, थ्रू यू, तो मेरी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं मेरे ऊपर? आपकी नहीं कोई नहीं 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 फीस वगैरह लग रही है? नहीं नहीं सर, मेरी कोई फीस नहीं है उसके लिए, किसी तरह के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अगर आपने लोन मेरे थ्रू लिया है या बैंक के थ्रू लिया है तो अलग से कोई प्रोसेस नहीं है
कि आपको लोन लेने के बाद अलग अलग सर्विसेज मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम बैंक ने सोर्स किया हुआ केस या मेरी कंपनी ने अगर कोई केस करके दिया है, कोई लोन करके दिया है, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और सिस्टम में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता जिसमें ये सब देखा जाए कि कौन सा कस्टमर कहाँ से क्या आया था, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, एक चीज होती है सर जो उसके बाद की बात करता हूँ मैं, आफ्टर सेल्स बोल सकते हैं जिसको हम। क्या होता है कि आपका कोई रिलेशनशिप मैनेजर है किसी भी बैंक में जो 2 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसने आपके अच्छे से लोन करा के दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बैंक का बंदा अच्छे से लोन नहीं करा के देता है, लोग होते हैं बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं, बड़े अच्छे से डील करके देते हैं। बट होता क्या है कि सर वो 2 साल से एक एक्सिस बैंक में है, उसको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, वो वाई बैंक में चला गया। ठीक है, आपका लोन तो अभी भी एक्सिस में चल रहा था ना, अब आपका नया आरएम आ गया है सर, अब उससे उतनी अच्छी आपकी ट्यूनिंग नहीं है या बात नहीं हो पा रही है, या आप उसकी सर्विस से खुश नहीं है, क्योंकि इसे लॉन्ग टर्म असाइनमेंट ना, कि ऐसा नहीं सर कि 1 साल 2 साल में लोन खत्म हो जाएगा। बट अगर मैंने लोन किया है, सिंस मैं 15 साल से हूँ, आई कैन अश्योर यू कि मैं लाइफ टाइम में तो यही करने वाला हूँ। तो जब तक आपका लोन चलेगा, कुछ से रिलेटेड कुछ भी सर्विसेज चाहिए, तो जो हम जैसी कंपनीज हैं वो अपने कस्टमर को एंड टू एंड वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। चाहे आपको पार्ट पेमेंट करना हो या उससे रिलेटेड कुछ भी आपको पता करना है, आपको बैंक में कोई इशू आ रहा है, कुछ भी इस तरह का, आप कहीं ट्रांसफर हो गए हैं, आपका लोन गुड़गांव से था, बैंगलोर चले गए हैं, आपको गुड़गांव ब्रांच से कोई हेल्प चाहिए, तो कंपनी लाइक अस ऑलवेज लव टू सर्व देयर कस्टमर्स। अच्छा, ये तो मेरे लिए एक मतलब पर्सनली मेरी इग्नोरेंस कह लीजिए, लेकिन मेरे लिए तो ये एक न्यू लर्निंग है। मैं तो यही सोचता था कि बैंक जो है वही देगा बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट और बाकी जो है उनकी अपनी कमीशन होती होगी। तो देन दैट मीन्स यू आर नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम मी, बट इफ आई come to you as a borrower, but you get your commission from the bank. Am I Absolutely sir, right? absolutely sir, absolutely right. Okay, okay, right. So I will just take some questions from Yes. the audience now. Mr. Manoj Singhma हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि is this possible that borrower is Mr. X and owner may be Mrs. X and Mr. X can claim under section 80C and 24? सी सर एक्चुअली तो क्या, एज पर लॉ तो ये होता है कि जिसके नाम भी प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी ओनर है, आइडियली जो क्लेम है इनकम टैक्स की रिबेट जो अंडर सेक्शन 24B एंड 80C, वो प्रॉपर्टी ओनर को ही करनी चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, लोग क्योंकि एक्चुअली होता है क्या, जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें दोनों का नाम लिखा होता है, बोरोवर को बोरोवर दोनों का नाम लिखा होता है, प्रॉपर्टी एड्रेस भी लिखा होता है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपका जो भी अकाउंट्स है या जो भी डिवीजन है वो वेरीफाई कर सके कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे, अनलेस अनटिल कि प्रॉपर्टी ओनरशिप के प्रूफ ना मान ले। आइडियली होना नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी ओनर को ही क्लेम करना चाहिए, बट लोग क्लेम करते हैं। Okay. Can I try to explain that? या प्लीज, श्योर सर प्लीज। See, it happened that I thought that by paying this 10 lakhs of rupees, my EMI would come down by 20 months, assuming there was a 50,000 was EMI. But actually, the tenure did not come by 20 months, but it came down by 14 months or something. And what I was made to understand by them was they had not reduced the interest component. They had I mean, the interest they were still charging from me, and it was adjusted against the rest of the balance months. See, actually, that's why the reduction was lesser than what I envisaged. See, whatever the part payment you made, that will be adjusted towards the principal outstanding only, sir. Because interest तो बैंक एडवांस में कैलकुलेट करता ही नहीं है। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है सर, वो महीने का महीने कैलकुलेट होता है। आप एक ईएमआई पे कर रहे हो, जो ईएमआई आपने पे की है उसमें सिर्फ पिछले महीने का इंटरेस्ट है, उसमें किसी अगले महीने का इंटरेस्ट नहीं होता है। So point well taken. So how do I next time? I still have an outstanding home loan. So next time when I am doing a part payment, what is that I must calculate and satisfy myself for that? See, sir, it depend कि how much the tenure left. अगर आपका टेन्योर ही 4 साल या 5 साल बचा हुआ है, तो आपकी पार्ट पेमेंट जब आप करोगे तो आपका टेन्योर कम होगा, क्योंकि टेन्योर का आउटस्टैंडिंग कम बचा हुआ है। अगर आपका 20 ईयर का टेन्योर है और आप 10 लाख रुपए पार्ट पेमेंट करोगे, तो आई एम श्योर दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय 25 to 30 months for sure. No. My question is not that the 10 lakh se. See, point is that the money which I am doing a prepayment was equivalent of say 20 months of EMI had it not been prepaid. Sir, actually absolutely agree. But जो EMI को आप कैलकुलेट कर रहे हो, उस EMI में इंटरेस्ट भी है, वो इंटरेस्ट अभी चार्ज हुआ नहीं है. That is the future interest. We cannot calculate. Mr. Dheeraj Khanna want to say something. Right. Sir, I have got 4-5 questions.
some are very basic and some are, I'll say, as far as my knowledge goes, some may be interest to you also. Please go ahead, sir. First is, sir, tell me, how will I see my chart sheet? See, I have no document with me as of now for my home loan. How can I obtain my chart sheet now? Can I do it online? Sir, you have to ask the banker for the loan agreement. They will send you the scan copy of the loan agreement, and that loan agreement have the entire chart sheet. So you have to request your banker. Can I do it from any branch of that bank, or I have to? Sir, it depends bank to bank. Some bank may take request from their banking branches. Some banks have the separate divisions. So it totally depends bank to bank. Okay, got it. Like Axis Bank has a separate branch, and some PSU bank has the different branches. So you have to contact your branch for this. Okay. Second, sir, I got so many calls or this thing that to shift my home loan from one bank to another, existing home loan. Is it advisable? So it's depend on your current rate of interest. If it's on good rate of interest, then there's no point to shift the loan unless until your existing bank not ready to reduce your rate of interest. First, you need to contact your existing banker and ask them to reduce the rate of interest as per the current market. I'm sure they will consider your application. If not, then you can switch your loan to other bank. So you mean to say? So you mean to say that if I had a loan of from defense loan was going on that time, so I had taken that loan, home loan for defense personals. I think my rate of interest is somewhere around 8% or something. At that time, when the rate of interest was around 8.5 or so. So now, can I shift to another bank, or can I approach my bank to reduce my home loan interest? Initially, you have to approach your existing bank. It's a better option to approach your bank to reduce the rate of interest. If they'll not consider your application, then you can shift your loan to some other bank at the better rate of interest. Usually, banks are offering around 7.4 to 7.6, depending upon the profile and loan amount. Okay, sir. Next question is, sir, what about top-up loans? Is it advisable? Sir, it depends your financial requirement. If you are looking for some financial assessment, then you can take a top-up. And top-up is also the bank to bank offer different rate of interest on top-up. Some bank usually offering the same rate as home loan up to 30% of the primary sanction amount. And some are offering 20-30 basis point over and above the existing rate of interest. So it totally depends your financial requirement. If you're looking for some funds, then you can definitely go for top-up instead of personal loan and other loans. So that is a better option. Okay, sir. And sir, tell me, if I have to take your services, like I wanted to show you my existing loan and then would like to take your advice for, then how should I contact you? Sir, Mr. Dheeraj, you can put it on. You can send this thing to our WhatsApp number. You can connect with us, and we will connect you. Number has been shared in chat box, so you can get the details from there. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Dheeraj. Thank you, sir. Pleasure talking to you, sir. Thank you. Sir, please again. Yeah, Mr. Chandresh. Good evening, sir. Actually, I have taken a home loan from LIC Housing Finance, and they have offered me a rate of interest of 7.75 as of now. Okay. But right now, they are again giving me an opportunity to reduce my rate of interest as per my CIBIL score to 7.15 by paying a processing fees of rupees 5,600 rupees. So I just need your advice. Is it advisable at this stage to reduce my rate of interest, because as per the RBI directions, the rate of interest will be again increasing soon. So my payment that I will be making to reduce the loan, will that be of some benefit, or again my rate of interest, which will be reduced to 7.15, again will be increased again? So there is no point of again making a payment. Absolutely agree, sir. But see, the repo rate is revised, twice in last 1.5 months. Initially, it was revised by 40 basis point. Now it's reduced. It's increased by 50 basis point. So you have to check with your banker, with LIC, whether they applicable or revise their repo rate according to this new repo rate. If they revise their lending rate according to this repo rate, then you can obviously go with this revised rate of 7.15%, because this is a very good rate of interest considering the current market scenario. And obviously they are charging rate according to CIBIL scoring and all this stuff, but still it's a very good option if they are offering 7.15%. If not, then you can reconsider about your loan to shift to other banks. Shiv, why should they? I mean, same question. Just I'm asking, why should they charge processing fee on this? See, मैं आपको बताता हूँ सर, हो गया था कि जब मैं आपको शुरू में एक बात बता रहा था कि एज ऑफ नाउ बैंक आर ऑफरिंग अराउंड 7.5
टू 7.6 अगर आप आज कोई लोन लेते हैं, 6 महीने बाद वही बैंक विद सेम रेपो रेट दे माइट ऑफर यू एट 7.2%। हुआ क्या है सर, उन्होंने 30 से 40 पैसे बैंक ने अपना मार्जिन कम किया है, रेपो रेट अभी भी 4.9 ही है। तो जो ये पैसा मांग रहे हैं आपसे, तो जो आपका मार्जिन फिक्स हुआ था शुरू में 2.6 का है, जो भी मार्जिन फिक्स हुआ था, उस मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए दे आर आस्किंग फॉर द कन्वर्जन फीस। ये फीस बैंक टू बैंक वेरी करती है, कोई 1,000 रुपए लेता है, कोई 2,000 रुपए लेता है, कोई 3,000 रुपए लेता है। बट मैं बोलूंगा अगर 30-40 पैसे का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है 10,000 या 1,100 रुपए से, तो इट्स अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि आप ईएमआई का डिफरेंस भी निकालोगे ना सर, उससे ज्यादा का डिफरेंस आपका निकल के आता है। राइट ओके। बिकॉज उनको अपने सिस्टम में दोबारा से सारी चीजें करनी होती है, वर्किंग करनी होती है, कुछ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भी आपसे साइन कराने होते हैं। तो 1,000-2,000 रुपए, आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी मच एक्सेप्टेबल। ओके। एक क्वेश्चन मिस्टर विकास जिंदल का है, व्हाट इज प्रेफर्ड ऑप्शंस, बाय होम लोन इंश्योरेंस और टर्म प्लान? I think EMI of term plan for same amount is less than home loan insurance. एब्सोल्युटली एग्री सर, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, सबने काफी सर्वे किया इस चीज पे। एक्चुअली क्या है, मैंने शुरू में बताया था, बैंक का प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टर्म प्लान, जो इंश्योरेंस कंपनी ओपन मार्केट में आपको दे रही होती है। सो इट्स बेटर टू ऑप्ट फ्रॉम ओपन मार्केट रादर देन टेकिंग फ्रॉम द बैंक। बैंक से तो लेने बैंक को एक्सेप्टेबल होगा वो? देखिए सर, ऐसा मैंडेटरी तो है नहीं। बैंक क्या करते हैं, बैंक यू नो समटाइम दे प्ले स्मार्ट इन दिस। क्या करते हैं कि जैसे जो नेगोशिएशन मैंने आपको बोली ना, वो नेगोशिएशन को इंश्योरेंस से लिंक कर देते हैं। वो बोलेंगे सर वैसे तो हम 7.70 का रेट देते हैं, बट आपको हम 7.50 का दे देंगे, बशर्ते कि आप ये इंश्योरेंस हमसे लो, बिकॉज दे आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ इंसेंटिव फॉर दिस ना। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, जो भी उनको उस पर प्रॉफिट हो रहा था, कुछ आपको पास ऑन कर दिया इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ 20 बेसिस पॉइंट, और कुछ उन्होंने अपने पास रख लिया। तो दे स्टार्ट प्लेइंग स्मार्ट इन दिस। ठीक है, तो ये है कि आप बताएंगे, आप नेगोशिएशन पहले कर लीजिए, मेक श्योर कि विदाउट इंश्योरेंस आपको बेस्ट रेट मिल जाए, फिर आप ओपन मार्केट से ले सकते हैं। बैंक से लेने में एक छोटा सा फायदा ये होता है सर, इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट अगर कुछ भी होता है, तो आपकी फैमिली को कुछ ज्यादा करना नहीं होता, क्योंकि बैंक का भी पैसा वहां पे इन्वॉल्व है, तो वो अपने आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम प्रोसेस करा के और बड़ी जल्दी और टाइमली आपको क्लेम मिल जाता है। ओपन मार्केट से आप लेते हो तो आपके नॉमिनीज हैं, उनको सारी चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि बैंक वहां पे कहीं पार्टी नहीं है। ये एक बेनिफिट है उसका, बट ऑल्दो यू हैव टू असेस कि ये जो बेनिफिट है कितनी कॉस्ट पे आपको मिल रहा है, दैट इज समथिंग यू हैव टू असेस। Okay. And I think this is where experts like you come into play. Absolutely, sir. अगर इंडिविजुअल खुद नहीं कर पा रहा है या उसके पास टाइम नहीं है। विकास जी का ही एक और क्वेश्चन है, you told about charge sheet in sanction letter when we apply for home loan, then bank charge for processing fee and property inspection charges. These charges are taken in advance. On loan approval, bank issues sanction letter. What is the option if you don't agree with charge sheet in sanction letter? Bank does not agree for any change in sanction letter. सर देखिए, तो But I have already paid rupees 8,000 to 10,000 for processing fee and inspection charges. सी उसमें जैसे दो ऑप्शन है, अगर बैंक आप या तो नेगोशिएट कीजिए उसको, बैंक उसको करेक्ट करेगा, अगर नहीं कर रहा है तो देन यू हैव द ऑप्शन, एटलीस्ट आपको पता तो है डे वन की आपके चार्जेस है, फिर आप उसको हिडन चार्जेस नहीं कह सकते, बिकॉज आपको डे वन पता था कि बैंक मुझसे ये चार्जेस लेगा। तो फिर या तो आप किसी दूसरे बैंक को अप्रोच कर सकते हैं कि जहाँ पे ये चार्जेस ना हो, या फिर आप उसके साथ जाएंगे तो एटलीस्ट आपको पता है कि मुझे दिस इज समथिंग आई हैव टू पे एट द टाइम ऑफ सर्टेन पोजीशन, एट द टाइम ऑफ क्लोजर मे बी पार्ट ऑफ इट। Will I be right if I ask the bank, if I am the person who's taking the loan, if I ask the bank कि ये जो भी चार्जेस हैं आप रिटर्न में लिखिए कि in case I don't approve of the this thing sanction letter, or if I don't take it then you will refund it back or something like that. सर ये आई गॉट योर पॉइंट। जो आप बात कर रहे हैं वो लॉगिन फी लेते हैं बैंक यूजुअली, जब आप एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं तो डिफरेंट बैंक चार्ज डिफरेंट टाइप अमाउंट। तो कुछ बैंक में पार्ट अमाउंट रिफंडेबल होता है, कुछ में नहीं होता है। और प्रोसेसिंग फीस जो लॉगिन फीस है स्टार्ट फ्रॉम 1,000 रुपीज टू 10,000 रुपीज। तो कुछ लोग 1,000 रुपए में आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं, सैंक्शन कर देते हैं, कुछ 5,000 में करते हैं। तो अगेन ये बैंक टू बैंक है, जब आप लोन एप्लीकेशन दे रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, जो भी बंदा या जो बैंकर है, जो भी आपका आरएम है जो उस एप्लीकेशन को देख रहा है, आप उससे पूछ सकते हो ये चीज कि इन केस ऑफ रिजेक्शन मुझे उसमें से कितना पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप शुरुआत में पूछ सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि वो बोलेगा जी नहीं वापस नहीं मिलेगा, तो आप लॉगिन फीस के लिए भी नेगोशिएट कर सकते हैं। 5,000 ना देके उसको बोलिए जी मैं तो 2,500 ही दूंगा, आप इस पे आप अप्रूवल दीजिए, आप इस पे बैंक से ओके कराइए। तो वो भी चीजें होती है, लॉगिन फीस भी नेगोशिएट होती है। मतलब
almost everything is negotiable, all kind of Absolutely. charges. Absolutely, sir. Absolutely. For example, I had recently applied for a loan, though it was not home loan. एंड वहाँ पे भी मेरे को अपनी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्शन के लिए बोला गया एंड मेरे को और उसकी वो सर्वेयर होता है उसकी फीस के लिए बोला गया एंड अल्टीमेटली दे चार्ज मी हाफ द अमाउंट व्हिच दे वर एक्चुअली आस्किंग इनिशियली. सो मेरा कहने का मतलब है दिस इज फॉर द ऑडियंस दैट एवरीथिंग इज नेगोशिएबल एंड यू शुड ट्राई एंड नेगोशिएट दीज चार्जेस. वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम विपुल. जस्ट अ सेकंड सर, मैं इससे पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हाँ ये जी, जो हाँ जी. सी आपने क्या किया है कि आपने एक एक्स बैंक के पास गए, मे बी वो आपका एग्जिस्टिंग बैंकर था, आप उसके पास गए, उसने जो भी आपको चार्ज बताया आपने पे कर दिए, आपने मार्केट को एक्सप्लोर ही नहीं किया. मैं कह रहा हूँ कि वो चार्ज हो सकता है कि आप नेगोशिएट करते तो भी वो बैंक एग्री नहीं करता, वो बैंक बोलता है कि सर सॉरी सर दिस इज समथिंग यू हैव टू पे. ठीक है, बट अगर आप मार्केट में आपने एक्सप्लोर किया होता, हो सकता है कि ऐसे बैंक का जो चार्जेस लेते ही नहीं, आपको नेगोशिएशन करना ही नहीं पड़ता. बट सिंस आपके पास एक ही ऑप्शन था, आप वहां पे गए, जो उन्होंने बोला आपने मान लिया, काम हो गया. यू आर एब्सोल्युटली राइट. मेरे केस में तो यही हुआ था. बस होता ही यही है सर. अगर आप मार्केट में गए होते, कोई हम जैसा लोग होते हैं जो आपको बता सकते हैं कि सर आप यहाँ से मत लीजिए, ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है, यहाँ पे इस तरह के चार्जेस नहीं है. राइट. विपुल सर प्लीज गो अहेड सर. मिस्टर यादव, मुझे एक बात बताइए, जो Please, आप जो बता रहे हैं कि बैंक जो चार्ज लगाता है चार्ज शीट में, ये चार्जेस ऐसा तो है नहीं कि बैंक क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर करता हो, उनके लगभग स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स ही होते हैं ना हर सर देखिए, बैंक के. बहुत से चार्जेस तो जो स्टैंडर्ड होते हैं, लाइक हाँ. चेक रिटर्न चार्जेस, रिपेमेंट ईसीएस स्वैपिंग चार्जेस, प्रॉपर्टी रिट्रीवल चार्जेस, ये कुछ स्टैंडर्ड चार्जेस हैं. बट होता है क्या है कि ये हर बैंक के ये भी अलग अलग होते हैं, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक्सिस बैंक में चेक बाउंसिंग के चार्जेस 500 रुपए हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 2000 रुपए हैं. मैं वही आपसे पूछ रहा था, तो मतलब मैं ये पहले सैंक्शन कराऊं, फिर उन चार्जेस को देखूं, ये करूं वो करूं, उसकी सर, बजाय आपके पास तो ये सूचना पहले से ही होगी. बिल्कुल सर, बिल्कुल. मैं यही बोलने वाला था कि आप फिर तो मैं इसीलिए तो मैं बोल आपके रहा हूँ साथ ना. अगर 1 घंटा लगा करके 2 घंटा बैठ करके अगर ये सारी चीजें, भाई आप मेरे को अगर 8, 10, 15 जो आपके जिनके साथ आप काम करते हो मेजर लेंडर्स हैं, आपको पता होगा ना कौन सा लेंडर कहाँ पर चोट करता है, किसकी चोट कम खानी चाहिए, किसकी पिटाई से कम चोट लगेगी, कहाँ कैसे, बिल्कुल वो अगर बिल्कुल आइडिया सर, पहले से बिल्कुल हो जाए. जी, कि आपने बोला कि बिना प्रोसेसिंग फीस के सैंक्शन हो जाता है, बिल्कुल हो जाते हैं सर. तो वो मतलब उससे फायदा क्यों ना उठाया जाए, बजाय कि मैं फंसूं, मैं पहले 8,000 रुपए का नुकसान करूं, फिर मैं कहूं ये चार्ज है मुझे पसंद नहीं आ रहा, फिर उसे माथा मारूं, फिर 1 महीना और कहीं घूमूं, फिर अपना सैंक्शन. ये वाला होमवर्क पहले क्यों नहीं करें सर? सर वही मैं बोल रहा था सर, जब पूछ रहे थे कि अगर मैं एक्सिस बैंक का कस्टमर हूँ तो एक्सिस बैंक से लोन क्यों ना लूँ. हो सकता है एक्सिस बैंक आपको सारी चीजें अच्छी भी दे दे, बट इन केस अगर ना दी होगी चीजें, जैसे मनी सर के साथ हुआ कि उन्होंने प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन के चार्जेस ले लिए, ये ले लिया, लीगल के अलग से चार्जेस लिए होंगे, जो भी चीजें रही हैं उनके पास, अगर वो नेगोशिएट उन्होंने किया नहीं है, बट अगर वो करते तो भी आई एम श्योर उनको वो एग्री नहीं करने वाले थे. आप सर हमको एक वो मोटा मोटा बता सकते हो, मतलब कोई लिस्ट विस्ट या कोई इस तरह से चेकलिस्ट की भाई ये चार्जेस होते हैं शुरू से लेकर के, मतलब आज मैं एज अ कस्टमर एक बैंक में वॉक इन करता हूँ, वहां से लेकर के मेरे लोन डिसबर्स होने तक, और मैं 10, 15, 5, 20 साल जब तक लोन का पूरा पेमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी वापस लेता हूँ, जनरली क्या चार्जेस की एटलीस्ट लिस्ट ऑफ चार्जेस पता लग जाए, तो हमें पता तो हो कि किस पॉइंट के ऊपर जेब में हाथ बिल्कुल. डालेगा बैंक. ये मेरा आस्क है मिस्टर यादव से, and he has promised us कि he will be giving a checklist which will be uploading on our Telegram channel. डेफिनेटली सर, That डेफिनेटली. he has been very मतलब gracious. चार्ज लिस्ट की ये चार्जेस होते हैं, मतलब या ये जो चार्जेस होते हैं चेक, इसमें. एक पूरी मतलब सर चेकलिस्ट जो पता होम लगे ना लोन कि के. कहाँ के बैंक हमारी जेब में हाथ डालता है, किस किस पॉइंट पर. एब्सोल्युटली सर, ब्याज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो दिख ही गया, वो भी बाकी कहाँ जेब कटती है पहले से ही पता लग जाए कि इस वाले पे भी टोल देना है, इस वाले पे भी देना है, अलग अलग. फास्टैग लगा देंगे सर, डोंट वरी, आई विल डेफिनेटली गेट इट डन सर. ये चेकलिस्ट he has agreed to give. So I was ठीक to है. announce this little later, and ये हमारे viewers के लिए आएगी, and thank you so much for that, Mr. Yadav. Definitely. DHFL से हाउसिंग लोन चल रहा था, पीएमएवाई में उन्होंने स्कीम में अप्लाई किया था. पीएमएवाई एक प्रधानमंत्री आवास योजना करके गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोग्राम आया था, जो कि अभी डिसकंटिन्यू है फ्रॉम 1 अप्रैल. सो उसमें सर क्या है कि उन्होंने डीएचएफएल से लोन लिया था. उनके साथ 2-3 इशू ये है, एक तो डीएचएफएल वैसे ही बंद हो गई है, डीएचएफएल हैज बीन टेकन ओवर बाय पिरामिल. ठीक है, तो उनका पूरा मैनेजमेंट ये पिरामिल ने टेक ओवर कर लिया है. दूसरा ये है कि जो ये पीएमएवाई की जो स्कीम थी, दैट वाज सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम एनएचबी. उनके कुछ क्राइटेरिया थे जो कि मेट होने चाहिए थे,
ऑल्दो वो बैंकर को ज्यादा 99% तो जब बैंकर उसको अप्लाई कर रहा है पीएमएवाई को तभी उसको पता होता था कि सारे क्राइटेरिया मैट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इन केस कुछ कभी कभार ऐसा होता था कि कुछ करेक्शन हो गई, कुछ गलती हो गई तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती थी वहां से। तो मुझे भी इनके साथ ऐसा ही लग रहा है कि इन बैंकर ने यहाँ से रिक्वेस्ट दी थी बट उनकी वो एनएचबी में रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई। सिंस कंपनी एनसीएलटी में चली गई दीवान हाउसिंग तो कोई था नहीं उसको देखने वाला और उन्होंने टाइम निकाल दिया उनका कस्टमर केयर ने धीरे धीरे। अब वो टाइम आ गया है कि वो स्कीम ही खत्म हो गई है 1 अप्रैल से। अभी पीएमआई डिसकंटिन्यू। तो ये किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बट जिस कंपनी के अगेंस्ट जाएंगे वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती आज के टाइम में। डीएचएफएल अपने आप में बंद हो गई है, अच्छा। दैट हैज बीन टेकन ओवर बाय पिरामिल। ठीक है, एक नई कंपनी आ गई है पिरामिल। दूसरा एनएचबी को अप्रूव करना था तो एनएचबी ने तो अगर सिस्टम में रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन लेटर दे दिया है उनको और बैंक ने कस्टमर को आगे कन्वे नहीं किया तो एनएचबी भी उससे बाहर हो जाएगी क्योंकि उन्होंने तो बोल ही दिया कि हमने तो रिजेक्ट कर दिया था। ये चीजें मांगी थी जो हमारे पास नहीं आई है। तो जिस कंपनी की गलती रही है वो कंपनी आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके। तो क्या कहते हैं जनरल, एनी अदर क्वेश्चन? एनीवन हैविंग एनी अदर क्वेश्चन? यस सर प्लीज। मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया रेपो रेट से बैंक लिंक कर लेता है, जो मतलब आरबीआई का मैंडेट है, जो मतलब उसको करना ही करना है। उसके बावजूद जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, जब भी इट इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है सब बैंकों में, अभी तो चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो वो दिखता नहीं है, मैं भी 12 साल से रियल एस्टेट में हूँ, मैंने रियलाइज किया जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो बैंक्स जो है वो बड़े कंपेटिटिव रेट्स ऑफर करते हैं फॉर अट्रैक्टिंग न्यू लोन्स। और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आप कह रहे हैं ऑटोमेटिकली उसका कम कर देते हैं, पता नहीं है, मतलब ठीक है, लेकिन वो वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कम करते हैं जो वो एग्जिस्टिंग को, नए बंदे को दे रहे हैं। मान लीजिए मैंने आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग्स आर अंडरस्टैंडिंग, और 2 साल बाद रेपो रेट ½ % कम हो जाता है तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हो जाएगा एज पर दी व्हाट, लेकिन नए बंदे को बैंक जो है वो 6.5% पे ऑफर कर रहा होगा जी। तो उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए ताकि मुझे भी वो 6.5% मिले और मेरा जो ब्याज का अगले 18 साल का बोझ है उसमें कुछ फर्क पड़े? देखिए सर वो मुझे उस वक्त में क्या, व्हाट इज द ऑप्शन टू मी एंड हाउ शुड आई गो अबाउट इट? मैं दोनों चीजें बताता हूँ। एक तो पहले ये बताता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों है कि आपका 7 चल रहा है हाँ, उनको 6.5 क्यों मिल रहा है। पॉइंट नंबर 1 2। हाँ, पॉइंट नंबर 2 ये कि आपको क्या करना चाहिए। सो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है कि आपका 7 चल रहा है उनका 6.5 हुआ है, दोनों का सेम रेपो रेट है फिर भी। ठीक है सर। एक्चुअल में क्या हुआ है कि सर जब आपका 7% रेट चल रहा है तो जो बैंक ने मार्जिन चार्ज किया था ओवर एंड अबाउ द रेपो रेट, ठीक है, मार्जिन मतलब जो वो अपना मार्जिन रख रहा है, जो हाँ जैसे अभी भी आपको 7.5% पे मिला है, ठीक है, 4.9 तो का रेपो मतलब रेट है। मैं मार्जिन की अगर बात करूं तो मार्जिन हो गया जी, मैंने जैसे मैं प्रॉपर्टी सेल करता हूं तो मैं 1% ब्रोकरेज लेता हूं तो वो मेरा मार्जिन है। नहीं 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 नहीं, हाँ मतलब उस तरीके से कह सकते हैं कि हाँ बैंक मतलब से मेरी प्रॉफिट कमाई ना। एक्सपेंडिचर, हाँ कमाई कह हाँ, सकते हो आप, मतलब सिंपल दूसरे भाषा आदमी में को कह मैंने सकते कहा हैं। मैं आपसे ½ % में काम कर लेता हूँ। जी जी, बस 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 आप आपके पास सारे सवालों के जवाब है सर। दूसरे आदमी को आपने हाँ, बोला मैं 50 पैसे में काम कर लेता हूँ। अब आप ये बोलोगे कि यार आपने उसकी तो 1 रुपए में कर दी, मेरे आपने अपना मार्जिन कम किया है बट मार्केट प्रैक्टिस चेंज नहीं हुई है सर, वो अभी भी दैट विल स्टैंड एट 1%। तो ये हुआ है। अब आपको बेनिफिट कैसे हो सकता है, मुझे बेनिफिट कैसे हो सकता है कि मैं जाऊं और कैप्टन विपुल से ये बोलूं कि कैप्टन साहब मेरी पिछली डील का 50 पैसे वापस दे दो, वो तो होगा नहीं। ठीक है सर। हम्म, बट मैं क्या हम्म, करूंगा, कैप्टन साहब मुझे एक और प्रॉपर्टी लेनी है, अब ये मेरी 50 पैसे पे कर दो, वो कर देंगे। ठीक है। हम्म, दूसरा क्या होता है बैंक लोन्स में क्या कर सकते हैं सर आप, जो अभी हम्म, किसी सर ने पूछा भी था कि जिनका एलआईसी से लोन चल रहा था, आप हम्म। बैंक में जाके जो मार्जिन जो अभी करंट प्रिवेलिंग मार्जिन हैं अपने मार्जिन का भी आप उसको कट ऑफ करा सकते हैं। उसके लिए बैंक माइट चार्ज समथिंग 10,000 मे बी 1,000 2,000 तो 5,000, वो वो जो बैंक टू बैंक वो वेरी जो करता है। पैसा चार्ज करेगा, इज इट वर्थ इट? वो मार्जिन मेरा एक बार रिड्यूस हो गया तो रिड्यूस रहेगा, मतलब इज हाँ दैट वो व्हाट यू रिड्यूस आर रहेगा, एक बार तो सेइंग? मार्जिन रिड्यूस हो गया फिर वो रिड्यूस रहेगा फिर द एंटायर टेन्योर। तो मेरे को उसमें बैलेंस ऑफ द टेन्योर पे अगर मैं देखता हूँ कि मान लीजिए मेरे से वो 5,000 रुपये चार्ज कर रहा है, जैसे अभी एक जनाब ने बताया कि बिल्कुल। 7,600 रुपये LIC मांग रहा है उनसे, हम्म। तो 7,600 रुपये अगर मेरे को अगली 10 साल 120 EMI पे अगर मुझे कैलकुलेट करके, नहीं नहीं तो नहीं करना चाहिए आपको। आपको ये देखना चाहिए कि आपका पर मंथ ईएमआई में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर वो 2 3 4 वही 5 हुआ ना, ईएमआई में 4 5 ईएमआई में अगर बराबर भी हो रहा है तब भी ठीक है सर। 7,600 डिवाइडेड बाय 120 तो 63 रुपये पर EMI का नहीं 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 नहीं, वो तो चार्ज करने में का से वो फायदा ले नहीं रहा है। है ना।
वो अगर 7,000 रुपए थ्रू आउट द टेन्योर आपका सेट ऑफ होगा तो करने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको 7,000 रुपए पार्ट पेमेंट करने से आपकी EMI 2,000-3,000 पर मंथ कम हो जा रही है, देन इट मेक सेंस टू रिवाइज योर मार्जिन्स और रेपो रेट जो भी है। नहीं, अगर मार्जिन कम होगा तो रेट बढ़ने पे मेरा रेट भी तो उसी स्पीड से वो तो कम सबका बढ़ेगा बढ़ेगा ना, तो सारे सर अगर रेपो रेट बढ़ेगा वो तो एग्जिस्टिंग हर किसी का बढ़ेगा ना। हुआ क्या है कि जो मार्जिन है सारा गेम मार्जिन का ही है, रेपो रेट में तो कंट्रोल है ही नहीं ना, आपका है ना किसी बैंक का है, कुछ नहीं कर सकते। रेपो रेट तो घटे बढ़ेगा, वो सबका घटे बढ़ेगा, बट जो मार्जिन है ना वो आप कितना कम कर सकते हो, दैट इज द गेम चेंजर। ठीक 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 है, ठीक तो है। आपने ये देखना है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग EMI चल रही है, लेट्स अज्यूम आपकी एग्जिस्टिंग EMI अभी 50,000 रुपए चल रही है, आपने रेट को कन्वर्जन कराया, आपने 7,000 रुपए दिए, आपकी EMI 50 की बजाय 47 हो गई है, 48,000 रुपए हो गई है, तो फिर सेंस हाँ है कि अगले 2-3 महीनों में वो पैसा बराबर हो जाएगा। बट अगर 100 रुपए कम हुई है तो फिर कोई फायदा नहीं है सर उसको कराने का। ठीक है, आई अंडरस्टूड। थैंक यू। फिर इससे थैंक यू बेटर ये विपुल। है कि आप इस लोन को कहीं और ट्रांसफर करा लीजिए, बिकॉज मार्केट में और ऑप्शंस काफी हैं जो बेटर रेट पे आपको दे देंगे, और मे बी वो फी भी चार्ज नहीं करेंगे आपको। अंडरस्टूड। Thank you Vipul. Since there is no other question, all we have to do is we have to end this session. लेकिन शिव, it's been a pleasure, really. होम लोन के ऊपर जो आपने हमारी आंखें खोली हैं और जो लोग जिस तरह से लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं, वो सच्ची में काबिल तारीफ हैं। एंड soon we'll be getting back to you with another session, and again related to home loans and various other kind of loans you deal in. एंड आपके जो तजुर्बा है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो अनुभव है, उससे हम फ़ायदा उठाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को बहुत फ़ायदा मिले। इससे पहले कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो, एंड थैंक यू शिव, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन दिस शो। It was really a great pleasure having you here. Thank you so much, sir. Thank you so much for having me here, sir. And thank you everybody, all those people who joined us, who spared their valuable time in this weekend. Thank you so much. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on